Now, we shall discuss what is inference and inference in two types, অবরোহ আরোহ। ইনফারেন্সর অন্য নাম হলো অনুমান, অনুমানকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো অবরোহ আরোহণ, অবরোহণ অনুমান আরোহণ অনুমান। অবরোহণ অনুমানটা দুই ভাগে হতো অব্যবহিত অনুমান, ব্যবহিত অনুমান বা ত্রিপদী যুক্তি। অব্যবহিত অনুমানটা চারি প্রকার: সমাবর্তন, ব্যাবর্তন, অন্তরাবর্তন, বিপরীতবর্তন। বর্তমান পড়িবা অনুমান কলে কোণ বুঝু। অনুমান গোটিଏ জ্ঞাନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଅନୁମାନଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ଅଧିଗତ ଜ୍ଞାନରୁ ଅନଧିଗତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ପର୍ବତରେ ଧୂଆଁ ଦେଖି ସେଠାରେ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁମାନ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପର୍ବତର ଧୂଆଁ ଏବଂ ତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନିଆଁ। ହେଲେ ଧୂଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଅନୁମାନଟା ସବୁବେଳେ ପରୋକ୍ଷ, ନଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତାପରେ ପଳେଇଲା ଆମେ ଅନୁମାନଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଅବରୋହ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଆରୋହଣ ଅନୁମାନ। ଅବରୋହଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍, ତାହାକୁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ, ତାହାକୁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ରାମ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ, ରାମ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ, এইটা অবରୋহ অনুমান। এটারে হেতুবাক্যর বাচ্যতা সিদ্ধান্তর বাচ্যতা ঠাରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଆରୋହଣ ଅନୁମାନ। ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ, ତାହାକୁ ଆରୋହଣ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଆରୋହଣ ଅନୁମାନ ଯଥା ଉଦାହରଣ ହେଲା ରାମ ମରଣଶୀଳ, ହରି ମରଣଶୀଳ, ସୀତା ମରଣଶୀଳ, ଯଦୁ ମରଣଶୀଳ, ରୁ ଅତେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆରୋହଣ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଆରୋହଣ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ଏକରୁ ଅନେକକୁ ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆରୋହଣ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଅନେକରୁ ଏକକୁ ଆସିଥାଉ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଅବରୋହ ଅନୁମାନଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ, ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନଟା କ'ଣ? ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନଟା ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର: ସମବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ତରାବର୍ତ୍ତନ, ବିପରୀତବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନଟା କ'ଣ, ତା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଅନୁମାନମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ରୁ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେତେକ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଥା ଆରୁ ଇ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ତାକେ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଅବ୍ୟବହିତ ଗଲା, ତାପରେ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। ତା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ନା ଦୁଇଟି ତ୍ରିପଦୀ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ଯେଉଁ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଯଥା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ରାମ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ, ରାମ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ। এইটা ହେଲା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ହେତୁବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାଚ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ସମବର୍ତ୍ତନ। Now let us discuss what is conversion. Conversion ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ସମବର୍ତ୍ତନ। ସମବର୍ତ୍ତନର ସଂଜ୍ଞା ସମବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ ବୁଝିବା? ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅବରୋହ ଅନୁମାନରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
व्यवहार करी हेतु वाक्यर तात्पर्य को प्रकाश करा जाए ताको समवर्तन कहा। समवर्तन हेतु वाक्य को समवर्तनीय और सिद्धांत को समवर्तित कहा। समवर्तन नियम समवर्तन नियम होची चारोटी। एक है समवर्तन उद्देश्य पद उद्देश्य समवर्तित विधेय हुए एवं दुई रे समवर्तन विधेय पद समवर्तित उद्देश्य दुई तीन गुण समान रहे अर्थात समवर्तन सदर्थक थिले समवर्तित सदर्थक हुए एवं समवर्तन नजर्थक थिले समवर्तित नजर्थक हुए। चार है समवर्तन अव्यक्त पद समवर्तित व्याप्त हो पारिबो नाही अर्थात अव्यक्त नहीं। बर्तमान आम चार समवर्तन जो चारोटी नियम अच्छी चारोटी नियम को प्रयोग करी चारोटी तर्क वाक्य जो आ ए ओ को समवर्तन करा। बर्तमान चारोटा तर्क वाक्य अच्छे आ ए ओ चारोटी तर्क वाक्य को समवर्तन नियम अनुसार सिद्धांत आम ग्रहण कर। बर्तमान आ तर्क वाक्य समवर्तन करा। आ तर्क वाक्य समवर्तन कौन आगे लिखे समवर्तन समवर्तित समवर्तन लिखले आ समस्त क ख अटे एवं आरु आम समवर्तन समवर्तन नियम अनुसार ई पाइबा ई पाइबा एवं एटी कोन हला ना समवर्तन उद्देश्य पदटा को समवर्तित विधेय होइछि एवं समवर्तन द्वितीय नियम समवर्तन विधेय पद ख समवर्तन उद्देश्य होइछि। 2 3 रे गुण समान समवर्तन सदर्थक थिबारु समवर्तित सदर्थक होइछि एवं 4 समवर्तन अव्यक्त पदटी विधेय अव्यक्त आत्मक विधेय अव्यक्त ता समवर्तित व्याख्या होइले। तेणु ई चार आम आ तर्क समवर्तन कले कौन पाइले ई तर्क वाक्य आटा सार्वत्रिक सदर्थक बा सामान्य सदर्थक से आम सिद्धांत पाइले कौन आंशिक सदर्थक बा ई तर्क वाक्य समस्त क ख अटे रु पाइले कौन समवर्तितटा सिद्धांतटी केतेक ख ख। बर्तमान कले से बुझे लिखाई प्रथम नियम अनुसार समवर्तन उद्देश्य पद ख को समवर्तित विधेय पद होइछि उद्देश्य पदटा विधेय पद होइछि एवं द्वितीय नियम अनुसार समवर्तन विधेय पद ख समवर्तित उद्देश्य पद होइछि। 3 तृतीय नियम अनुसार समवर्तन सदर्थक थिबारु समवर्तित सदर्थक होइछि अर्थात ई समवर्तन अछि आत्मक वाक्य सार्वजनिक सदर्थक सदर्थक होइछि तो समवर्तित से सदर्थक हो तो सिद्धांत पाइले आमे आंशिक सदर्थक अर्थात ई पाइले। अच्छा चतुर्थ नियम अनुसार समवर्तन अव्यक्त विधेय पद समवर्तन जो चारटा नियम अछि समवर्तन चतुर्थ नियम कहूँ आ ई पाइले अव्यक्त पदटी समवर्तन अव्यक्त पदटी समवर्तित व्याप्त हो पारिबो नाही। तो समवर्तन अव्यक्त पद के ना तर्क अव्यक्त पद है विधेय ख सी सिद्धांत केतले आसी उल्टी किछि ना ई तर्क वाक्य पाइतबा हेतु खटी अव्यक्त होइछि। तेणु एटी समवर्तन प्रत्येक नियमटी हम पालन करछु तेणु एटारे समवर्तन कौनसी नियम लंघन करा जाय एवं आ तर्क वाक्य समवर्तन कले कोन पाइबा आ तर्क वाक्य समवर्तन कले ई तर्क वाक्य माने परीक्षा बड़ क्वेश्चन आसे आ तर्क वाक्य समवर्तन बा समवर्तित डैश तर्क वाक्य आ ई तर्क वाक्य द्वितीय है समवर्तन ए तर्क वाक्य समवर्तन करू ए तर्क वाक्य समवर्तन कर कौन पाइबू ए पाइबा। तो देखो आगे लिखले समवर्तन ए कौन सी को ख नुहे तो समवर्तित आसला किसी ए आसीबो देखो कौन हम समवर्तन उद्देश्य पद कोटा समवर्तन विधेय पद हम समवर्तन विधेय पदटा समवर्तन उद्देश्य पद हम 2 तृतीयटा गुण समान रहिबो समवर्तन सदर्थक थिबारु समवर्तन नजर्थक थिबारु समवर्तित नजर्थक होइछि एवं 4 चतुर्थ नियम वाला समवर्तन अव्यक्त पदटी समवर्तित व्याप्त हो पारिबो नाही। तेणु एटी ए तर्क वाक्य समवर्तन ए रे उभय पद व्याप्त तेणु एटी तो सिद्धांत आम ग्रहण करू ए रू आसिले अधिक सारा पदरु से व्याप्त पद व्याप्त व्याप्त तेणु अव्यक्त होबार प्रश्न नाही।
ये चतुर्थ चार कथार नियम आम पालन करी अनुसार जो लिखि दिखाई प्रथम नियम अनुसार समवर्तन उद्देश्य पद को समवर्तित विधेय पद होती। द्वितीय नियम अनुसार समवर्तन विधेय पद ख समवर्तित उद्देश्य पद होती। तृतीय नियम अनुसार गुण समान रहे अर्थात समवर्तन नजर्थक समवर्तित पद नजर्थक हम समवर्तन नजर्थक समवर्तन नजर्थक होती। चतुर्थ नियम अनुसार समवर्तन अव्याप्य पद समवर्तन व्याप्य हो पार ना अर्थात किंतु एठारे समवर्तन दुईटी पद व्याप्य शारीरिक समवर्तन और शारीरिक शब्द एक वाक्य दुईटा सारा पद व्याप्य हो समवर्तित व्याप्य होती सिद्धांत व्याप्य होती। तेणु एठारे समवर्तन कौन से नियम उल्लंघन करना तेणु ए तर्क वाक्यर समवर्तित व समवर्तन ए तर्क वाक्य बर्तमान आम आ तर्क वाक्य समवर्तन कलु तापर है ई तर्क वाक्य समवर्तन ई तर्क वाक्य समवर्तन कले कौन हम देखो ई तर्क आगे लिखे समवर्तन तापर है समवर्तित ई तर्क वाक्य समवर्तन ई पूरा नाम आंशिक सदर्थक ई तर्क वाक्य लिख केतेक को ख गटे एवं केतेक को ख देख समवर्तन समवर्तित पाइबा निज ई पाइबा नियम प्रथम नियम कौन समवर्तन उद्देश्य पद को समवर्तित विधेय पद होती। द्वितीय नियम कौन समवर्तन विधेय पद ख समवर्तन उद्देश्य पद होती। तृतीय नियम कौन गुण समान अर्थात समवर्तन सदर्थक थिबारु समवर्तन सदर्थक थिबारु समवर्तित सदर्थक होती अर्थात ई तर्क वाक्य को समवर्तन कला समवर्तित ई पाइब ई तर्क वाक्य होती। चतुर्थ नियम समवर्तित चतुर्थ नियम कौन समवर्तन अव्याप्य पदटी समवर्तन व्याप्य हो पार ना समवर्तन अच्छी दुईटा सारा पद उद्देश्य विधेय वाक्य तेणु ई तर्क वाक्य जेहेतु आम समवर्तित ई पाचु तेणु दुईटा सारा पद अव्याप्य थी से उल्टी आसिक से आंतर बसले दुईटा सारा अव्याप्य रही तेणु ई तर्क वाक्य समवर्तन कले आम ई पाइब तेणु एठारे समवर्तन समस्त नियम पालन कराई तेणु ई तर्क वाक्यर क्वेश्चन आज ई तर्क वाक्य समवर्तन आ समवर्तित ई तर्क वाक्य बर्तमान आम लास्ट है वो तर्क समवर्तन करवा तेणु देख वो तर्क समवर्तन समवर्तनीय समवर्तित समवर्तनीय को वो लिख केतेक को ख नुहे ओ आम वो पाइबा समवर्तित ओ है ओटा आंशिक नजर्थक ओ पाइले आंशिक नजर्थक देख समवर्तन समवर्तित पाइबू समस्त केतेक को ख नुहे कौन हम ना केतेक ख विधेयटा उद्देश्य आसो उद्देश्यटा विधेय आसो समवर्तित पाइलु केतेक ख यहाँ नियम अनुसार ग्रहण करदेलु किंतु देखा जाए चारिटा नियम जब आम न पाड़ी चारिटा नियम कौन से नियम लंघन हेल्ले समवर्तन हो पार ना ओ तर्क समवर्तन कला बेले आम ओ आम ड्र करदे कि दरकार कौन हो चारि चतुर्थ नियमटा लंघन हो कमी प्रथम नियम अनुसार समवर्तन उद्देश्य पद को समवर्तित विधेय पद विधेय पद द्वितीय नियम अनुसार समवर्तन विधेय पद ख समवर्तन उद्देश्य पद होती। तृतीय नियम अनुसार गुण समान रहे अर्थात समवर्तन नजर्थक देखो समवर्तन नजर्थक अच्छी समवर्तन नजर्थक हम समवर्तन नजर्थक समवर्तित नजर्थक 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 पाइला अच्छा अर्थात ड्र कर चतुर्थ नियम कौन चतुर्थ नियम अनुसार समवर्तन अव्याप्य पद के उद्देश्य को समवर्तित व्याप्य हो पार ना अर्थात नियम कौन किंतु एटारे व्याप्य होती कहीं वो तर्क वाक्य उद्देश्य पदटी अव्याप्य विधेयटा व्याप्य तो उल्टी आसो उद्देश्यटा अव्याप्य ना उद्देश्यटा विधेय जहाँ कह व्याप्य हो विधेयटा तो उद्देश्य पड़े आस अव्याप्य रही तेना सब मन रखो वो तर्क वाक्य उद्देश्य पद अव्याप्य विधेयटा व्याप्य प्लेस चेंज करेंगे निश्चित अव्याप्य पदटा ही व्याप्य हम तेणु ये चतुर्थ नियम अनुसार समवर्तन अव्याप्य पद को समवर्तन व्याप्य हो पारे ना किंतु एठारे व्याप्य होती तेणु यह
ସମବର୍ତ୍ତନ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ତିନିଟା ନିୟମ ପାଳି ସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ ତେଣୁ ଏଠି ସମବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମଟିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବାରୁ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।